Okay, let's get started. So, in today's session, we'll see live project in the React. So, first of all, we'll see what is the project. Okay, it's the details. After that, how to do the setup, right? In today's session, I will not do any setup, anything. So, everything is there in the project. There is a document for the setup. What you will have to do, follow that document and do the setups. Okay, I will share with the complete project. The setup on your machine you will have to do, okay, by following the document. It's not like there is nothing and you have to do the setup. There is a document, you will have to do the setup. After that, I will explain you what questions will be asked and how you will have to answer this. Okay, and after this, so what details you will have to add in the uh, in your resume, right, for this project. What will be the name? That document I will share you. Okay, I will prepare some 3-4 combinations, different combinations, right, of the project explanation and what was your roles and responsibilities. Okay, so that 4-5 combinations I will prepare and I will send you after this sessions. Okay, so after this, right, after this today's session, your responsibility to do the setup and run this project. Okay, I mean, and after running this, start doing the modification in this project. So in the React files, so it has an everything, right? Node.js and everything, backend files. Okay, you can follow that, but at least start doing some modifications and checking. Uh, I mean, in that React, right? Or if it is something you want to change the colors or do some different ways. Okay, you can do the changes in the React course, right? Class component, functional component, and you can check that. Okay, and for the interview purpose, you will have to make your explanation ready by running this project again and again, right? And making your own explanation. So if interviewer asks something on this project, then what you will explain it. So once you look into the files and this project, once you run it and go through it, right, then you will be able to answer interviewer questions. Okay, so some of you will be using this project as your for your experience, right? Some of you will be showing the experience as 2 years, 3 years. Those students will show this project as an experience. Okay, so before this project, add some other project. You can take I mean, at least 2 projects you can add it. uh, the first project you can take from internet, just make some description and add that project. Okay, and the latest one you can add this project. Some of you, for last year students, right, you can use this project as your final year internship project. Okay, it's a very huge and big project. Okay, so basically this project has in 2 modules. Okay, but you need only one module. Okay, because it's in e-commerce website, right? E-commerce website has in 2 modules. One is in front end, which we are using. If we take an Amazon, right, Amazon.in. So this is an store basically. ये जो अमेजोन का हम जो भी यूज करते हैं अमेजोन के ऊपर ही है, ये स्टोर है। यहाँ हम परचेस करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स दिखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे कार्ट में ऐड करते हैं एंड हम इसको परचेस करते हैं, पेमेंट होता है, देन हमें ये डिलीवर होता है। ओके, बट एक्चुअली बस कि ये सिर्फ स्टोर बनाया उतना ही नहीं होता है। अभी ये यहाँ पे जो सपोज कि इन्होंने ये डाला, ओके, अभी ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे, देर आर मल्टीपल थिंग्स इनसाइड दिस, राइट? तो इसके लिए मतलब कौन कौन से स्टाफ है, कौन से कस्टमर कौन से है, ऑर्डर कितने आए हैं, कितने डिलीवर हुए, वो कैसे ट्रैक करेंगे? तो उसके लिए एक डैशबोर्ड रहता है। हर एक जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट रहते हैं उनके लिए एक डैशबोर्ड रहता है। तो उस डैशबोर्ड के ऊपर सब कुछ समझ में आता है।
अभी ये जो प्रोजेक्ट है अमेजन का, उनका भी खुद का डैशबोर्ड है। एंड इनका और भी एडिशनल ये है, एक्चुअली ये इनके मल्टीपल डैशबोर्ड, मतलब एक यूआई या डैशबोर्ड, एक स्मॉल स्मॉल डैशबोर्ड ये हर एक इनको भी देते, सेलर्स के लिए भी देते हैं। ओके, उनका भी अकाउंट होता है, देन उनके वो खुद भी प्रोडक्ट्स उनके मैनेज कर सकते हैं। मतलब सपोज कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो मैं मेरा अकाउंट क्रिएट करके वहां पे मैं मेरे प्रोडक्ट लिस्ट करके ऐड कर सकता हूँ। देन उनका अप्रूवल वगैरह लगता है, प्रोसेस है आगे, बट आई कैन डू दैट। तो उनके लिए भी एक ये रहता है। बट खुद कंपनी के लिए भी दे क्रिएट एन डैशबोर्ड्स, कंपनीज के लिए भी एक डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पे एवरीथिंग इज मैनेज्ड। ठीक है, तो अभी हम जो प्रोजेक्ट देखेंगे वो सिर्फ डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट है। ओके, उसका यूआई भी है, हमारा स्टोर भी है, बट स्टोर ऑलरेडी पहले दो तीन बैचेस ने यूज किया है। तो आपको स्टोर नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड भी अपने आप में खुद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है। ये उसका स्टोर है, मतलब दिस इज एन स्टोर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन आपको नोटिफिकेशन या कार्ट में जाओगे, रन करोगे, लॉग इन करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, एवरीथिंग इज देयर इन दिस साइड द स्टोर। ओके, और स्टोर ऑलरेडी मल्टीपल लोगों ने यूज किया है, तो आपको यूज नहीं करना है, आपको फोकस देना है डैशबोर्ड के ऊपर। तो दिस इज एन डैशबोर्ड। तो प्रोजेक्ट का नाम नाम क्या है? डैश स्टार। अभी के लिए तो डैश स्टार है। अगर मुझे सपोज कोई नया थोड़ा सा अलग नाम आता है, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक नाम होता है, राइट? सो डैश स्टार ऑफ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, इस तरह से हम हेडिंग में डाल सकते हैं, या सिर्फ डैश स्टार डालोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, देन वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स कितने, वैल्यूज क्या आए हैं, मतलब व्हाट वाज द अमाउंट, यस्टरडे ऑर्डर कितना था, ओके, दिस मंथ कितना था, लास्ट मंथ कितना था, ऑल टाइम सेल कितना हुआ है ईयर के लिए, टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, ओके, मतलब करंट डेटा, ऑर्डर पेंडिंग कितने हैं, 52 पेंडिंग्स है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कितने, 25 मतलब प्रोसेसिंग में, ऑर्डर डिलीवर्ड कितने, 98 है। तो डैशबोर्ड के ऊपर ये, अगर किसी ने भी जो एडमिन रहेगा उसने लॉगिन किया था, उसको ये डिटेल्स दिख जाएगी। वीकली सेल का मतलब क्या मैप है, ओके, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, येलो स्विंग कॉर्न, मिंट, ओके, बेबी कैरेट, कैले स्क्वैश, मतलब अलग अलग मैप वाइज यहाँ पे डेटा दिखा है कि किसका कितना सेल है। रिसेंट ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ओके, स्टेटस क्या है उनका, डिलीवर्ड है, कैंसिल किया है, प्रोसेसिंग है, मतलब यहाँ पे जो भी हमें दिखते हैं, राइट, यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टेटस है। तो जैसे भी स्टेटस चेंज होता है, वो आप ये वाला काउंट बढ़ते जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर, ये रिसेंट ऑर्डर का है। ओके, ये इनवॉइस वगैरह सब कुछ यहाँ से हम डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और ये इनवॉइस कस्टमर, जो कस्टमर रहता है, राइट, उनके लिए भी उनके अकाउंट पे ये सब इनवॉइस वगैरह अवेलेबल रहता है। तो ये रहा डैशबोर्ड, यहाँ पे टेबल है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो डैशबोर्ड के बाद नेक्स्ट है कैटेगरीज। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो भी स्टोर हमारा रहेगा उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे। ओके, ग्रीन लीफ, रेनबो, कैलिमेट, कैल, ओके, जो भी, ओके, ब्लूबेरी, ऑल दिस प्रोडक्ट्स, मिंट है, मतलब यहाँ पे जो भी हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे मतलब जो स्टोर है, स्टोर पे जो भी दिखता है वो सब कुछ एडमिन से कॉन्फ़िगर होता है। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ मिक्सअप नहीं रहता है, स्टोर अलग प्रोजेक्ट रहता है, जो कि डेटाबेस से डिटेल्स उठाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स है और वो प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। बट वो प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ के लिए एक डैशबोर्ड रहता है, उस डैशबोर्ड के थ्रू ये प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ ऐड, डिलीट, रिमूव करते हैं। ओके, तो जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किए, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखते हैं इस तरह से। तो ये एक अलग प्रोजेक्ट रहता है, वो एक अलग रहता है प्रोजेक्ट डैशबोर्ड वाला। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी यहाँ से ऐड करते हैं, वहाँ पे हमें दिखते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे ऐड करके इमेज वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो ये जाएगा मोंगोडीबी में डेटाबेस के अंदर। कैटेगरीज हमें कौन कौन सी मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे फिश एंड मीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। अगर आप कोई भी ऐप अगर देखते हो कि ब्लिंकिट है, या फिर मल्टीपल एप्स है, बिग बिग बास्केट है, अ, अभी इस पे भी स्विगी के ऊपर भी आया है, ओके, देयर आर मल्टीपल एप्स, अगर आप देखोगे तो उनके
वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज पे मतलब प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तो उस कैटेगरीज भी हमें सिलेक्ट करनी पड़ते हैं। एंड जब भी अगर यूजर फाइन एंड यूजर है उसको उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको उस कैटेगरी के अंदर के सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वैसे रहता है। ठीक है, अगर आपको दिखाना होगा तो आपको दिख रहा होगा राइट, ये वाला स्क्रीन मेरा, एबल टू सी मोबाइल, दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन, अब दिख रहा होगा। अरे एक मिनट, दिख रहा है। अगर ये ऐप है, इस ऐप के ऊपर जाएंगे हम, देखो यहाँ पे टॉप में ही सब कैटेगरीज दिख रहे हैं। ग्रोसरी, यहाँ पे देखोगे ना ये अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड से जो भी कुछ उस कैटेगरी के अंदर ऐड किए प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइफस्टाइल। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो वो सारे यहाँ पे दिखते हैं। तो सब कॉन्फ़िगर कहाँ से करते हैं, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है डैशबोर्ड से। नहीं नहीं, एक्चुअली ये आपको दिख रहा था स्क्रीन शेयर पे नहीं दिख रहा था, मेरा जो वीडियो दिखता है वहां पे मैंने दिखाया था। एबल टू सी आप, या आप ओपन करके देखो कोई भी ऐप है नॉर्मली, उसको भी देखोगे तो सेम तरीके से ऐसा रहता है। हम्म? तो यहाँ पे एक कैटेगरीज है, मिल्क एंड डेयरी, मतलब जो भी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट रहेंगे तो इस कैटेगरी के अंदर है। तो पहले कैटेगरी क्रिएट करना है एंड देन उसके रिलेटेड उसके प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। ये सब डैशबोर्ड से करेंगे एंड देन ये सब कुछ स्टोर में दिखेगा। एट्रीब्यूट्स का इतना कुछ नहीं है, छोड़ दो अभी, या अभी इतना यूज नहीं किया। ओके, मतलब आईडी उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे उसके कौन सा कलर रहेगा, उसकी कितनी साइज रखनी है, क्या करनी है, वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो हम यहाँ पे उस एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। ओके, पहले उसका एट्रीब्यूट क्रिएट करना पड़ता है देन ये देना पड़ता है। ओके, कूपन्स अगर सपोज कि कोई सेल वगैरह लगाना है स्टोर के ऊपर, तो 10% डिस्काउंट वाला कूपन, स्टार्ट डेट क्या रहेगी, उसकी एंड डेट क्या रहेगी, राइट, समर रहेगा विंटर रहेगा, जैसे कि अमेजोन के ऊपर अलग अलग सेल्स आते हैं। तो सब पूरा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होता है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वो डैशबोर्ड से करते हैं। तो उस तरह की कुछ कूपन्स वगैरह लगाने हैं तब भी ये यहाँ पे है। तो ये कैटलॉग के अंदर ही सब कुछ है। कस्टमर्स, मतलब कस्टमर कौन कौन से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका पूरा डेटा भी हमें यहाँ पे दिखता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं, मतलब स्टोर से जो भी कस्टमर ने साइन इन किया है हमारे यहाँ पे उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखते हैं। ऑर्डर्स, मतलब अभी स्टेटस क्या है ऑर्डर का, लेटेस्ट वाले ऑर्डर्स क्या है, डिलीवर्ड है, प्रोसेसिंग है, कैंसिल कितने हुए, क्या हुए, वो सारा यहाँ पे दिखता है। इसके लिए अलग अलग फिल्टर्स भी है, मतलब पेंडिंग कितने ऑर्डर्स है, डिलीवर्ड कितने, अगर ज्यादा दिन से कितनी पेंडिंग्स है। तो ये सब मॉनिटर करने के लिए वो एम्प्लॉयज रहते हैं, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। और कोई ऑर्डर डिले लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बहुत दिन से लेट हो रहा है ऑर्डर तो क्या रीजन है उसका, वो भी जानना पड़ता है। मतलब जो भी ये लोग होते हैं जो भी स्टोर के ऊपर रहते हैं, ऑर्डर लिमिट क्या होता है, 7 डेज ऑर्डर, 15 डेज ऑर्डर, मतलब सब कुछ दिखना है हमें चाहिए। कैश वाले कितने, क्रेडिट वाले कितने हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट की बिटवीन, अगर फिल्टर भी कुछ लगाना है तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर का डिटेल्स भी यहाँ पे दिखता है डैशबोर्ड में, मतलब वहाँ पे जो स्टोर्स के अंदर जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आए हैं, सब कुछ डेटा यहाँ पे दिखता है। स्टाफ अगर अलग अलग मैनेज करना है तो यहाँ पे स्टाफ मैनेज कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ एडमिन रहेंगे, कुछ सीईओ रहेंगे, कुछ मैनेजर रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा, ड्राइवर रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, ऐसे अलग अलग स्टाफ्स उस कंपनी, उस जो भी कंपनी है पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए जो भी स्टाफ रहेगा उनका यहाँ पे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं स्टाफ, ठीक है, उसका फोटो, ये वाले डिटेल्स सब कुछ। सेटिंग्स, अगर अभी यहाँ पे डॉलर का, अभी यहाँ पे रुपीज नहीं है, पर रुपीज हम ऐड करके यहाँ पे डिफॉल्ट करेंसी भी डाल सकते हैं हम। ओके, मतलब अभी यहाँ पे डॉलर पे दिख रहा है तो रुपीज में करना है तो रुपीज में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नहीं है ऑप्शन बट हम डाल सकते हैं उसका। एक्चुअली ये छोटे छोटे चेंजेस से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं।
क्योंकि अभी जहाँ पे ये डॉलर वगैरह करेंसी दिख रहे हैं, अभी हमारे करेंसी दिखानी है, तो कहाँ पे चेंजेस लगेंगे, क्या करेंगे, राइट? तो इस तरह के चेंजेस आपको देखना है, एंड कुछ खुद आपको इसमें चेंजेस करने हैं। ये टाइम जोन है, टाइम जोन यहाँ पे रहेगा, एशिया टाइम जोन रहेगा हमारा, यहाँ पे टाइम जोन तो दिखता है। ओके, डेट फॉर्मेट क्या है? अभी डेट फॉर्मेट सपोज कि आपको चेंज करने के लिए बोला, तो ये कहाँ से चेंज करोगे? डेट फॉर्मेट चेंज करना है, ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 डेट फॉर्मेट्स हैं, बट इसमें और कुछ नया डालना होगा, देन वो कहाँ से डालोगे, उसके अकॉर्डिंगली सारे डेट फॉर्मेट्स भी चेंज होने चाहिए। तो वो चेंजेस आप कैसे करोगे? तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रिसिप्ट साइज कितना रहेगा, जो भी रिसिप्ट निकलेगा ना उसका साइज कितना रहना चाहिए, उसका है। शॉप नेम क्या है? अभी शॉप शॉप नेम यहाँ पे कच्चा बाजार दिया है, जो भी स्टोर रहता है तो उसका, अब यहाँ पे चेंज भी करेंगे तो उसका नाम चेंज होना चाहिए। मतलब जो भी है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बैकएंड से होता है, देन अपडेट करोगे तो स्टोर का डिटेल्स भी चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितने ऐड कर सकते हैं? तो 5, अगर ज्यादा भी यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो ज्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं पर प्रोडक्ट के लिए। तो ये वाला प्रोडक्ट जो ऐड करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अभी इंटरनेशनल, मतलब सपोज कि अभी जो भी वेबसाइट बनता है, अब यहाँ पे हमारे कंट्री का नाम नहीं आता, यहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करोगे तो वहाँ पे दिखना चाहिए आईएसओ कोड वगैरह वगैरह। तो इंडिया का भी यहाँ पे नहीं है, तो इंडिया का आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज नाम दे दो, आईएसओ कोड क्या है हमारे इंडिया का, वो देना है, एंड देन पब्लिश यस। तो इंडिया ऐड हो जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। अब क्या होता है ना, जैसे भी यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करते हैं, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, अभी ऐसा नहीं होता है कि हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैसा नहीं होता है। अभी सपोज कि इंडिया में आप अगर देखोगे कि तो वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे कन्वर्ट करोगे, आप हिंदी सेलेक्ट करो तो हिंदी में दिखता है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी का अलग प्रोजेक्ट रहता है और इंग्लिश का अलग प्रोजेक्ट रहता है, जर्मन का अलग प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट तो एक ही रहता है, बस इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो हमें वर्ड्स दिखते हैं ना, ये वाले सब, ये सारे वर्ड्स दिखते हैं ना, इन सब के लिए वहाँ पे, मतलब हिंदी में नेम के लिए हिंदी में भी लिखा होता है, जर्मन में भी लिखा होता है, इसका एक फाइल रहता है। तो जैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ इससे टेक्स्ट का कन्वर्जन होता है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट वही रहता है, बस इस टेक्स्ट का कन्वर्जन होता है। अभी भी बाद में सपोज कि पहले पहले कुछ वेबसाइट्स थे सिर्फ इंग्लिश में थे, तो गवर्नमेंट ने जैसे फोर्स किया कि हमारा लैंग्वेज तो हिंदी है, तो उन्होंने बाद में हिंदी, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया कि उन लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट फिर से नया हिंदी में लिखा, नहीं। तो इनके लिए सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में इन नामों के लिए, अभी ये नेम है, ये जो नेम दिखता है इसके लिए हिंदी में क्या रहेगा, तो नाम, तो वो लिख के रखा। जैसे भी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करोगे तो वो चेंज होता है। तो उसको लोग बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब प्रोजेक्ट इंटरनेशनलाइजेशन। आपको प्रोजेक्ट एक ही लैंग्वेज में बनाना है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सिर्फ उस पर्टिकुलर नाम के लिए, इस नाम के लिए आईडी रहेगा, उस नाम के लिए उस लैंग्वेज में क्या रहेगा वो वर्ड वहां पे देना है, बस वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे जर्मन करेंगे हम, तो ये जर्मन में कन्वर्ट होता है। ओके, ये देखो यहाँ पे जर्मन में दिख रहा है सर आपको कोड, जो कि समझ में नहीं आ रहा है हमें ये वाला, बाद में इंग्लिश तो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। करेंसीज का भी, और करेंसी भी यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने बोला इंडिया का, तो यहाँ पे सिंबल क्या रहेगा, नेम क्या रहेगा, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंडिया वाला। अब ये हो गया डैशबोर्ड। अब इसका ऑनलाइन स्टोर क्या है, तो ऑनलाइन स्टोर इसका व्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे, या स्टोर कस्टमाइजेशन कुछ स्टोर के अंदर करना है, जो भी फाइनल दिखता है, जैसे कि ये अमेजोन का भी है जो हमें दिखता है, ये है स्टोर है, इसका डैशबोर्ड उनके पास है। अब हमारे पास ये डैशबोर्ड है, इसका स्टोर भी हम ओपन कर सकते हैं, ये वाला स्टोर है, इसका नाम क्या दिया था, कच्चा बाजार, राइट? ये वाला देखो कच्चा बाजार। ये जो लोग यूज करेंगे यहाँ पे, देन क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, परचेस करेंगे, सब कुछ, ये पूरा इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके इसके थ्रू होगा, इस डैशबोर्ड के थ्रू। तो ये सपोर्ट भी करता है ऑल द रिजोल्यूशंस, मतलब लैपटॉप पे चलेगा, बड़ी स्क्रीन पे चलेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर है, मोबाइल के अंदर भी ये प्रोजेक्ट चलेगा, ओपन होगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। देन यहाँ पे प्रोफाइल है, डैशबोर्ड, एडिट प्रोफाइल, अगर कुछ करना है, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉगिन का भी ऑप्शन है, लॉग आउट का भी ऑप्शन है। लॉग आउट करेंगे, इसका admin@gmail.com ये है, लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे दिखता है।
सो ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाए जो कि आप थोड़ा पढ़ के अंडरस्टैंड करोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो द डैशस्टार इज एन ई कॉमर्स एडमिन टेम्पलेट, is a project designed to manage an online stores एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब जो भी एडमिनी ऑनलाइन स्टोर रहता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब प्रोडक्ट ऐड करना, कैटेगरीज ऐड करना, वो सब कुछ जो भी है उसका ये यहाँ से होता है। मतलब वो प्राइसेस भी और प्रोडक्ट ऐड करने, डिस्काउंट देना उस प्राइस के ऊपर, वो सब कुछ वो डैशबोर्ड के थ्रू होता है। इट इन्वॉल्व्स रिएक्ट बेस्ड फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड विद द बैक एंड सर्विस दैट हैंडल्स वेरियस ई कॉमर्स ऑपरेशंस। द प्रोजेक्ट इंक्लूड सेवरल की फीचर्स। अभी ये जो प्रोजेक्ट है डैशबोर्ड, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं? डायनेमिक ट्रांसलेशन, जो अभी हमने देखा लैंग्वेज का अगर जो भी ट्रांसलेशन होता है वो डायनेमिकली होता है, जैसे हम चेंज करेंगे वो चेंज होता है। अभी आगे क्वेश्चंस आते हैं कि वो कैसे होता है डायनेमिक ट्रांसलेशन, उसके लिए क्या यूज किया। ओके, तो वो डिटेल्स यहाँ पे ऐड किया है। डायनेमिक ट्रांसलेशन का अलाउ क्या है? allows the application to support multiple languages making it accessible to a global audience। मतलब एक वेबसाइट अभी जो अमेजोन है, अमेजोन तो पूरा वर्ल्ड में है। ओके, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जर्मनी वाले करते हैं, स्पेन वाले भी एक्सेस करते हैं, तो उनको उनके लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ डायनेमिक ट्रांसलेशन का? तो उसके लिए i18 नेक्स्ट लाइब्रेरी एक रहता है, वो लाइब्रेरी उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऐड करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है, तब जाके ट्रांसलेशन होता है सब कुछ। ठीक है। This popular library is often used in React application to manage translations. It provides a tools to easily switch language and manage translation files। अभी इस लाइब्रेरी अगर यूज करेंगे, हमने जस्ट लैंग्वेज स्विच किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कन्वर्जन वगैरह होता है, अभी उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेशन फाइल्स, these are typically JSON files that contains key value pairs different languages, for example a key like add product might map to add product in English and दिस, उसके लिए ये नाम रहेगा दिस इन फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच के लिए। ओके, अब ऐड प्रोडक्ट के लिए ये नाम रहेगा। बस ये डिटेल सिर्फ हमें वो जेसन फाइल के अंदर देना है, बाकी कन्वर्जन का वगैरह सब कुछ ये i18 जो नेक्स्ट लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी हैंडल करेगा। तो ये हो गया डायनेमिक ट्रांसलेशन के लिए। अभी आपको क्या याद रखना है, ये वाला लाइब्रेरी यूज किया है, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको नहीं पता है देन प्रॉब्लम आएगा। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्बिनेशंस, जो प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं टू मैनेज variation of products such as different size, color, materialize, allowing for a force compensation product catalogs, comprehensive product catalogs। okay, implementation कैसे किया है? attribute management। okay, each product can have multiple attributes, color, size, क्या क्या करना है उन सब का भी configuration हम पीछे से कर सकते हैं, उनके images चेंज कर सकते हैं, उनके नाम में मतलब थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन offered in different combinations of these attributes। For example, t-shirt might be available in combination of the size। मतलब हम जब भी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे साइज भी रहता है, एस एम एल साइज, मीडियम, लार्ज। ओके, कलर्स क्या क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो ये भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं। तो ये आपको पढ़ना इसलिए है कि इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्या क्या प्रोजेक्ट था, तो ये फीचर्स थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये फीचर्स है प्रोजेक्ट का, कौन कौन से फीचर्स थे, क्या क्या आप क्या करते थे, जब भी वो पूछते तो इस तरह का ये एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया। यूजर इंटरफेस, एडमिन कैन ऐड और मॉडिफाई प्रोडक्ट combination through a user friendly interface, selecting available attributes and setting stock level for each combination। मतलब स्टॉक भी कितना है क्या है वो सब कुछ। अभी सपोज कि कोई, अभी सपोज कि प्रोडक्ट है हमारा, उसका स्टॉक कितना है वो भी मेंटेन हमें बैकएंड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे भी स्टॉक खत्म होगा तो आउट ऑफ स्टॉक वहां पे आना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो लोग खरीद रहे हैं बट हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं तो क्या डिलीवर करोगे, वैसे भी होता है। तो वो सब कुछ इस फीचर्स के अंदर मैनेज होता है। स्टाफ मैनेजमेंट, मतलब जो भी स्टाफ है उस कंपनी का या प्रोडक्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी यूज करने वाले हैं, उनका मैनेजमेंट। टू मैनेज द स्टाफ मेंबर्स हु कैन एक्सेस एंड परफॉर्म टास्क विद इन एडमिन पैनल, इंश्योरिंग ओनली ऑथराइज्ड पर्संस हैव एक्सेस। मतलब सपोज कि अभी स्टाफ भी कैसे मैनेज करना होता है, सपोज कि कुछ लोग होते हैं, अभी हम कुछ लोग हायर करेंगे उस डैशबोर्ड के ऊपर काम करने के लिए,
तो कुछ लोग सिर्फ ये प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करेंगे, मतलब प्रोडक्ट की इमेजेस बनाना, ऐड करना, वो चेंज करना। तो उनको सिर्फ ये जो प्रोडक्ट वाला दिख रहा है, इतना ही एक्सेस होना चाहिए। ये वाला कैटलॉग, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, अगर उन्होंने लॉग इन किया ना, तो उनको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट की इमेजेस, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखना, सिर्फ उतना ही दिखना चाहिए। तो इस तरह के भी अलग अलग लॉगिन्स हमें या स्टाफ क्रिएट करना पड़ता है उनको। बेस्ड ऑन दैट एक्सेस, वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकते हैं। या सपोज कि प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, उन दोनों को एक्सेस देना है, तो उन दोनों को एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरह का हिस्सा भी हमें हम स्टाफ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे है रोल। ओके। अकाउंट है, सिक्योरिटी गार्ड, वो नहीं है, मतलब उस तरह का नहीं है फीचर्स। बस इस तरह के भी फीचर्स होते हैं। ठीक है। उस पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर हम जैसे भी यहाँ पे यूजर ऐड किया, वो जैसे भी लॉगिन करेगा ना, एक यहाँ पे ऐड करने के बाद वो जैसे वो लॉगिन करेगा, तो उसको पर्टिकुलर पार्ट ही दिखता है। तो आप इंटरव्यू में ये बोल सकते हैं कि अलग अलग यूजर्स ऐड करते थे। ओके, उनके अलग अलग रोल्स रहते थे। ओके, बेस्ड ऑन दैट रोल वो उनको उतना ही दिखता था। तो ये उनका क्या था, क्रिएट न्यू स्टाफ मेंबर्स कैन बी एडेड इन द स्पेसिफिक रोल्स, एडमिन, मैनेजर एंड परमिशंस। मतलब स्टाफ ऐड करना, उनको परमिशन, क्या क्या परमिशन देना है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी दिखनी चाहिए एंड प्रोडक्ट दिखना चाहिए, उतना ही दिखना चाहिए। या किसी को कुछ सपोज की पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसको उतना ही दिखना चाहिए। तो वो परमिशंस भी हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं है, बट यू कैन ऐड दिस। जब एक्सप्लेन करोगे तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। ओके। सो रीड, अभी रीड, अपडेट, डिलीट एंड वैलिडेशन, ये CRUD ऑपरेशन का पूरा मतलब स्टाफ को ऐड करना, मतलब उनको फेच करना, उनको अपडेट करना, डिलीट करना, वो एक CRUD ऑपरेशन यहाँ पे है। मतलब ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, CRUD ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्ट का भी क्रिएट करना पड़ता है हमें, प्रोडक्ट ऐड करना पड़, मतलब रीड करना पड़ेगा प्रोडक्ट। और रीड कहाँ पे होगा, स्टोर के अंदर। अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा प्रोडक्ट को। तो ये सारे डिटेल्स भी हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। कैटेगरी मैनेजमेंट के थ्रू जैसे हमने कैटेगरी देगा, कैटेगरी का भी सेम। ओके। to organize product into categories, making it easier for customer to browse and find products। अगर सपोज कि प्रोडक्ट के लिए कैटेगरीज नहीं रहेगा, सब कुछ स्कैटर्ड रहेगा, तो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सपोज कि मुझे कोई वेजिटेबल से खरीदना है, तो उस कैटेगरी के अंदर जाके मैं सिर्फ उतने ही स्क्रॉल करूंगा, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। और सपोज कि कैसे भी ऐड किया, कैटेगरी नहीं है वहां पे, देन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कैटेगरी होना चाहिए। अब कैटेगरी के लिए भी कैटेगरी बनानी चाहिए हमें, वो रीड करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए, डिलीट करते आनी चाहिए कैटेगरीज। ओके। तो उनका भी CRUD ऑपरेशन यहाँ पे है। यहाँ पे सब कुछ है, बस यहाँ पे लिखा है हमने। यहाँ पे सपोज कि अभी कैटेगरी में जाओगे, कैटेगरी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिख तो हमें रहा ही है यहाँ पे। देखो ये वाला कैटेगरीज, यहाँ पे भी सारे ऑप्शन है एडिट का और डिलीट का। तो यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया। एडिशनल कंसिडरेशंस क्या क्या है, बैकएंड इंटीग्रेशन, द फ्रंट एंड कम्युनिकेट्स विद द बैकएंड वाया रेस्टफुल एपीआई। अब ये फ्रंट एंड का बैक एंड का कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो नोड जेएस के अंदर इसके एपीआईज बनाए बाय यूजिंग रेस्ट एपीआई। रेस्टफुल एपीआई यूज करके हर जगह पे रेस्ट ही यूज होता है। अब इवन आप जावा में जाए, डॉट नेट में जाए, या नोड में आए, या पाइथन में जाए, कहीं पे भी जाइए, रेस्ट से एपीआई बनाते हैं। और जैसे हमने एपीआईज यूज किए थे, राइट, वाइल इन द सेशंस, राइट, तो वैसे एपीआईज नोड जेएस के अंदर बनाए। बस यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो एपीआई कॉल होगा, एंड वो एपीआई डेटाबेस के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे नोड जेएस यूज किया है। सिमिलरली स्टाफ, स्टाफ में ऐड करें तो वो स्टाफ टेबल के अंदर जाएगा। तो वो पूरा कम्युनिकेशन कैसे होता है, रेस्टफुल के अंदर। तो रेस्टफुल के भी कुछ मेथड्स होते हैं, उनका भी मैंने एक्चुअली भेजा होगा यहाँ पे, अगर नहीं भेजा होगा तो मैं फिर से भेजूंगा। तो कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं उनका, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, रेस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि ये पूछते हैं इंटरव्यू में। Each CRUD operation corresponds to specific endpoint that manages data in database. Okay, likely using technology like Node.js and MongoDB और SQL। मतलब डेटाबेस में MongoDB यूज करो या SQL यूज करो। एंड इसके लिए जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है, दिस इज अ Node.js। ओके, Node.js में एपीआईज बनाते हैं। तो कुछ एपीआईज यहाँ पर देखो और खुद बनाने की कोशिश करिए। ओके, वो किस तरह से बनाया होगा, उस तरह का बना सकते हैं।
तो कुछ टाइम के बाद एक्चुअली में एक CRUD ऑपरेशन भी उसका रिकॉर्डिंग आएगा। तो रिएक्ट से एक फॉर्म है, उसका बैकएंड में एपीआई कैसे बनाना है यूजिंग नोड जेएस, एंड वो उसको कैसे कनेक्ट करना है MongoDB से। तो उसके CRUD ऑपरेशन भी, उसके कुछ वीडियोस हो जैसे भी बनेंगे मैं वैसे ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, आप उस टाइम पे देख लेना। बट अभी इस प्रोजेक्ट को देख के आप, या थोड़ा सा आपको जैसे भी कोई ट्यूटोरियल मिलता होगा तो उसको फॉलो करके भी एक सिंपल CRUD ऑपरेशन बना दो, कि एक रिएक्ट का फॉर्म रहेगा, ओके, उसके ऊपर 4-5 फील्ड्स ले लो, सबमिट करने के बाद नोड जेएस में एक एपीआई लिखो, उसके ऊपर जाना चाहिए एंड उसके थ्रू MongoDB में जाना चाहिए। तो इसके ऊपर जो भी सेशंस है, आई थिंक आपके बैच लिए नहीं लिया था गजानन सर ने, उनके नोड जेएस एंड मोंगो वाले जो एक 2-3 सेशंस है, मैं उनका रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। ठीक है। अब सिक्योरिटी के लिए क्या यूज किया होगा, उसे भी वैसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। तो द एप्लीकेशन इंप्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी करना पड़ता है। सपोज कि कोई लॉगिन कर रहा है, अभी लॉगिन कर रहा है तो उनका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी आके लॉगिन कर रहा है। अभी सपोज कि आप जैसे भी कोई इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करते हो, तो वहां पे आप देखोगे तो कुछ टाइम के लिए अगर जैसे भी 5 मिनट के लिए आप इनएक्टिव है, ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। आप जैसे भी लॉगिन करते हैं तो आपको एक सेशन टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर सेशन टाइम तक ही आप एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अगर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपको लॉग आउट किया जाता है। ठीक है। तो टिपिकली यूजिंग JWT, मोस्टली ये JWT है, जेसन वेब टोकन्स। ओके, ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का यूज करके सेशन मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कि कितने टाइम तक लॉगिन होना चाहिए, एंड मतलब सपोज कि हम कुछ टाइम, जैसे कि जीमेल आपने एक बार लॉगिन किया तो बार बार आपको लॉगिन करना नहीं पड़ता है। आप उसको ओपन किया तो जीमेल ऑटोमेटिकली, आप जीमेल के ऊपर क्लिक करोगे तो लॉगिन होता है आपका। ओके, तो वहां पे क्या होता है, वो सब कुछ डिटेल्स कुकीज में सेव होता है, वो बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। बट वैसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए नहीं होता है। ओके। या हम कोई लॉगिन कर रहे हैं तो हमारे लिए एक टोकन मिलता है, मतलब एक टोकन होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वैलिड रहता है। तो टोकन सब कुछ बनाने का, सब कुछ करने का काम ये JWT जेसन वेब टोकन है, इसका यूज करते हैं। और इसका एक लाइब्रेरी रहता है, उस लाइब्रेरी का, JWT लाइब्रेरी रहता है, उस लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है टू मैनेज दिस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। क्योंकि जो भी यूजर लॉगिन वगैरह करते हैं ना, उनका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैनेज करने के लिए ये JWT टोकन। तो इसके बारे में भी थोड़ा पूछते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट है, आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट करना है फॉर द इंटरव्यू पर्पस। UI UX, so the admin panel is designed to be a intuitive with clear navigation and responsive design to support use on different devices। मतलब कि UI UX का यूज करके या Bootstrap का यूज करके ये अभी सेम ही वेबसाइट कैन सपोर्ट ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैब, इन सब के अंदर ये सपोर्ट करता है। इन सब का कंक्लूजन क्या है, दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स एन comprehensive solution for managing e-commerce platforms backend operations। e-commerce platform उसका backend का operation। By understanding these features in detail, students will be better prepared to discuss project in the interview question। मतलब ये आपके लिए लिखा है। Okay? आपको ये जैसे भी फीचर्स अंडरस्टैंड करोगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, 2-3-4 बार पढ़ो, ताकि आप एक्सप्लेन करो। ये जो भी है I1811 इनके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लो, सर्च करके क्या क्या ये क्या रहता है, किसके लिए यूज होता है। अब आपको क्या करना है, मतलब जैसे भी हम शेयर करेंगे आपको ये वाला प्रोजेक्ट, तो उसके बाद क्या करना है आपको, तो मैं आपको ये फोल्डर शेयर करूंगा। ओके, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये जो जिप फाइल रहेगी, ये जिप फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जाना है। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे भी जाओगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे इंडेक्स फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। इंडेक्स के ऊपर आप जैसे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज की है, यूजर पैनल क्या है, ओके, कोर फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्ट की। तो ये एक्चुअली वो स्टोर का मोस्टली यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी है, मतलब स्टाफ क्रेड है, प्रोडक्ट कर है, कैटेगरी है, कूपन क्रेड है, ये सारा सब कुछ है। अभी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो बैकएंड रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, बैकएंड कहाँ पे है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप जैसे भी जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के पीछे जैसे भी आओगे तो यहाँ पे ये डैश स्टार
फोल्डर है। इस डैशटार फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको बैकएंड एंड डैशटार ऐसे दो चीजें दिखेगी। बैकएंड मतलब कि इसका नोड जेएस एंड मोंगोडीबी रिलेटेड जो भी है वो इस बैकएंड के अंदर है, मतलब जो एपीआईज बना है वो बैकएंड के अंदर है। और ये डैशटार है, यहाँ पे यूआई है पूरा, जो भी हमें रिएक्ट वाला कोड जो भी है वो इसके अंदर है। ओके, तो ये पैकेज लॉग डॉट जेसन ये सब यहाँ पे है। और सोर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको फोल्डर्स दिखेंगे, हुक्स है। ओके, देखो यूज एट्रीब्यूट सबमिट, ये सारे हुक्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ये पूरा रिएक्ट के लिए है और बैकएंड है, बैकएंड इज फॉर नोड जेएस एंड मोंगोडीबी का जो भी कोड रहेगा वो सब कुछ इसके अंदर है। अब इसमें इस बैकएंड जो फोल्डर है इसको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया है। ओके, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड देन या लाइव डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो यहाँ पे भी लाइव डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं आप। ये इसका एक्चुअली अच्छा बाजार का है। हाँ सेम ही रहेगा, यूजर पैनल। यहाँ पे और भी डिटेल में दिया है किस तरह से स्टोर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करोगे, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एडमिन कॉन्फ़िगरेशन, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट ये यहाँ पे भी है, राइट, आप ये के लिंक इसके ऊपर ही है, इसको फॉलो करना है आपको। आफ्टर द npm पैकेज इंस्टॉल पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर आपको ये डिटेल्स ऐड करनी है जैसे भी उन्होंने दिया है। सो रीनेम जो इन्वायरमेंट आपकी ये जो भी फाइल है उसको आपको इसमें रीनेम करना है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, बस आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी आप बोलोगे कि आप क्यों कॉन्फ़िगर करके नहीं दे रहे या पूरा डॉक्यूमेंट आप करके क्यों नहीं दे रहे या आप दिखा क्यों नहीं रहे। तो अभी क्या करोगे, आप इसके बाद डायरेक्टली जाओगे प्रोजेक्ट कंपनीज के अंदर, तो वहां पे कोई आके आपको पूरा हेल्प नहीं करेगा। वहां पे बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है एंड यहाँ पे ये रिपोजिटरी है, आप कोड ले लो, इन डॉक्यूमेंट को फॉलो करके आप सेटअप कर लो। आप ट्राई कर लो कि क्या आप सेटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारा स्टेप्स यहाँ पे लिखा है, बस आपको ये फॉलो करोगे तो पूरा आपका रन हो जाएगा। बस आपके पास क्या बोलते हैं उसको, ठीक है जो भी जाओ, आप एटलीस्ट इतना एफर्ट्स लेना चाहिए कि आप इन स्टेप्स को पढ़ोगे एंड देन चेंजेस करते करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप एंड इसको सेटअप करोगे। ओके, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन यू इन्वायरमेंट फाइल विल लुक्स लाइक दिस, तो इस तरह से इन्वायरमेंट फाइल होना चाहिए आपका। ये पूरी स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये सारे डिटेल्स इन्वायरमेंट फाइल के अंदर आपके होने चाहिए, और इन्वायरमेंट फाइल ऑलरेडी है वहाँ पे। इंपोर्ट डेमो डेटा, ओके, डेमो डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया है ये पूरा। रनिंग द बैकएंड, तो ये बैकएंड रन करना है आपको इस तरह से। ओके, एक बार बैकएंड रन हो गया, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करना है तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी npm पैकेज है, आफ्टर डाउनलोडिंग द टेम्पलेट अनजिप इट, ओके, वीएस कोड, ये पूरा आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। रिनेम फिर से इसको रिनेम करना है, प्लीज वॉच दिस वीडियो, वहाँ पे एक वीडियो दिया है, इस वीडियो को फॉलो करना है आपको। यहाँ पे जो भी चेंजेस दिए, यहाँ पे जो भी हाइप चेंजेस किए तो उस तरह से ये पूरा फॉलो करके आपको चेंजेस करने हैं। ओके, यहाँ पे भी ये लॉगिन करके चेंजेस करने हैं आपको, मतलब लॉगिन लॉगआउट के लिए ये। ओके, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपकी वो जो फाइल है इन्वायरमेंट डॉट लोकल फाइल, ये इस तरह से दिखनी चाहिए। ओके, रनिंग द स्टोर, रनिंग करने के लिए आपको ये यहाँ पे भी चेंजेस दिए कुछ, ओके, चेंजेस करने हैं आपको, यहाँ पे दिखेगा एंड आपको रन करना है। रन डेवलपमेंट से आपको रन करना है। ये स्टोर का कॉन्फ़िगरेशन में, स्टोर आपके साथ हम भेजने वाले नहीं है। एडमिन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करोगे, तो एडमिन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी हमें एडमिन डैशबोर्ड जो दिखा रहे हैं राइट, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करोगे, तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया है, ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं ये वाला। अब रन कैसे करना लोकल सर्वर के ऊपर, तो ये आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, रन ऑन लाइव सर्वर कैसे करना है आपको, लाइव सर्वर मतलब कि वर्सल जो है राइट, ये वर्सल लाइव सर्वर है, यहाँ पे भी आप डिप्लॉय करके आप ये कर सकते हैं। अभी ये जो भी देखोगे, अभी ये उनका जो है, जिन्होंने यहाँ पे कच्चा बाजार स्टोर 9.वर्सल.ऐप, तो ये वर्सल जो है ये यहाँ पे हम आपकी जो भी प्रोजेक्ट सब कुछ रहेगा आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके ऊपर किस तरह से डालना है आपको, यहाँ पे ये डिटेल्स दिया है। गिटअप का अकाउंट क्रिएट करना है, गो टू वर्सल साइन इन विद द गिटअप,
गिटहब के साथ साइन इन करना है। तो ये वर्सर क्या करता है, गिटहब का जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसको उठा के रन कर देता है। तो ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स आप जैसे भी फॉलो करोगे सारे स्टेप्स, तो वैसे आपको जो भी आप नाम रहेगा उस नाम से ये प्रोजेक्ट इस तरह से ऑलवेज दिखेगा वर्सल के ऊपर। आप भी खुद भी जो भी बनाओगे ना उसके ऊपर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो वर्सल के ऊपर। तो कहाँ पे जाना है फिर एक बार, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। इसको फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों भी बैक एंड एंड जो यूआई है उन सबको रन करके देखना है। एंड देन आपको एक CRUD ऑपरेशन जो भी दिए हैं वो CRUD ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने देखना है। न्यू कैटेगरी ऐड करना है, न्यू स्टाफ ऐड करना है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, और देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता है बैक एंड डेटाबेस के अंदर। ओके। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो उसका स्टोर है, ये सेटअप होने के बाद हम स्टोर भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो स्टोर के अंदर भी दिखेगा। ओके। बस आपको इंटरव्यू के पर्पस के लिए रिज्यूमे में ऐड करने के लिए सिर्फ ये डैशबोर्ड ऐड करो। बाकी वो अभी ई कॉमर्स कच्चा बाजार वो कुछ ऐड मत कीजिए। जो स्टोर है वो स्टोर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसको ऐड कर दो एंड इसके बारे में ही एक्सप्लेन कर दो। अभी क्वेश्चंस क्या क्या किस तरह से आएंगे। ओके। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। ओके। ब्रीफ ओवरव्यू। मतलब पहले तो जो भी आपको पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी। तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम बताना है, क्या क्या फीचर्स है। ओके। वो उसका बारे में जो भी हमने ऊपर फीचर्स दिए उन फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज किए थे वो भी आपको एक्सप्लेन करते टाइम एक्सप्लेन करना है। ओके। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज किया था। ओके। यानी बैक एंड के लिए नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस यूज किया था। अभी जो भी यहाँ पे नोड है मोस्टली नोड के बारे में बताओ फॉर बैक एंड के लिए। ओके। फीचर्स क्या क्या थे, की फीचर्स लिस्टेड बिलो। जो भी ऊपर हमने फीचर्स देखे अभी उन फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ओके। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में जैसे बोलेंगे एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो इतने डिटेल्स आप रेडी करो। और हर एक का अलग अलग होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके नहीं देंगे क्योंकि अगर सेम ही करोगे, बाई मिस्टेक किसी ने दोनों का इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू पकड़ जाएगा। ओके। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपका थोड़ा सा अलग अलग तरीके से खुद का आपका बनाओ, अलग तरीके से रहना चाहिए। अभी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्या क्या आर्किटेक्चर था आपका प्रोजेक्ट के बारे में। द प्रोजेक्ट फॉलो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेयर द रिएक्ट फ्रंट एंड कम्युनिकेट विद द बैक एंड सर्वर। मतलब बैकएंड का जो नोड जेएस में है उसके साथ कम्युनिकेट करता था। द फ्रंट एंड हैंडल्स द यूआई यूएक्स व्हाइल द बैकएंड मैनेजेस डेटाबेस इंटरेक्शन एंड बिजनेस लॉजिक। फ्रंट एंड है वो यूआईएक्स के लिए, यूआई यूएक्स के लिए है, और बैकएंड किसके लिए है, इंटरेक्शन विद द डेटाबेस एंड बिजनेस लॉजिक के लिए। ठीक है। तो नोड जेएस के अंदर एंड मोंगोडीबी में उसका ये बैकएंड है। मतलब बैकएंड नोड जेएस में है, डेटाबेस मोंगोडीबी में। हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट अ डायनेमिक ट्रांसलेशन, वो डायनेमिक ट्रांसलेशन कैसे इंप्लीमेंट किया, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो आपको एक बोलना है कि वी यूज अ लाइब्रेरी लाइक आई11 नेक्स्ट फॉर डायनेमिक ट्रांसलेशन विच अलाउज स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज seamlessly. Translation are stored in JSON files and components are connected to these files to display text in the selected language. तो ITN का यूज करके ये इंप्लीमेंट किया था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड कॉम्बिनेशंस आर मैनेज्ड। तो किस तरह से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्बिनेशंस मैनेज किए थे। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स सच एज द साइज एंड कलर आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। उनके लिए साइज एंड कलर्स वो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था विद देयर पॉसिबल वैल्यूज। ओके। combinations are created based on these attributes to represent different validations, different variations of the product and the admin to manage this. तो ये पढ़ो थोड़ा, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे पढ़ोगे तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। व्हाट वैलिडेशंस आर नेसेसरी फॉर CRUD ऑपरेशंस, वैलिडेशंस क्या क्या किए थे फॉर स्टाफ एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। वैलिडेशंस इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड्स इंश्योरिंग डेटा फॉर्मेट आर करेक्ट। मतलब ईमेल है, टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट है, नंबर की जगह पे नंबर है, तो इस तरह के वैलिडेशंस चेक करता है। ओके। इन्फोर्सिंग यूनिक कंस्टेंट वेयर नेसेसरी, यूनिक प्रोडक्ट। मतलब सपोज कि अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर हम वही प्रोडक्ट का आईडी डुप्लीकेट होगा और कहीं भी जगह पे यूज करेंगे
तो मिल्क की जगह पे हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि सब्जी कुछ। तो प्रोडक्ट का यूनिकनेस भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। हाउ डज द प्रोजेक्ट हैंडल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, सेम JWT टोकन के बारे में हमने जो एक्सप्लेन किया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लो, पढ़ो इसके बारे में। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? ये क्वेश्चन मैनेज अगर कोई मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछेगा, और वो पूछेगा कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे एंड आपने किस तरह से हैंडल किए। अब यहाँ पे हमने एक आंसर दिए है, बट आप अब खुद का बना सकते हैं। मतलब क्या चैलेंज आया, मतलब ये प्रॉब्लम आया, बट हमने ये यूज करके इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो इस तरह का आंसर बना सकते हैं। वन चैलेंज वाज मैनेजिंग डायनेमिक ट्रांसलेशन ऑफिशियल। यहाँ पे ये एक आंसर है, बट इट इज नॉट कि यही आंसर आपको बार बार सबको एक्सप्लेन करना है। आप खुद का कुछ बना दो इस प्रोजेक्ट के। मतलब ये जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में किसी ने पूछा एंड देन आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो पहले ही प्रिपेयर करके जाइए। ओके, वी ओवरकम दिस बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड हुक इन द रिएक्ट टू मैनेज लैंग्वेज स्टेट ग्लोबली अक्रॉस द एप्लीकेशन। ये पे एक आंसर है, आप खुद का आपका बना के रेडी रखो। हाउ डज द फ्रंट एंड कम्युनिकेट विद द बैक एंड? फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे कम्युनिकेट करता था? तो वही रेस्टफुल एपीआईज बनाए थे नोड.js के अंदर, एंड बैक एंड फ्रंट एंड से हम उनको कम्युनिकेट करते थे। अभी कौन सी लाइब्रेरी यूज की थी? फ्रंट एंड यूजर एक्सियोस टू फेच एपीआई टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द बैक एंड। वी फॉलो रेस्टफुल प्रिंसिपल्स। बैक एंड में क्या रेस्टफुल फॉलो करिए था, फ्रंट एंड से एक्सियोस का यूज करके कम्युनिकेट करते थे फ्रंट एंड बैक एंड। ये ऑलरेडी हमने देखा था, राइट? सो ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपके लिए टिप्स क्या रहेंगे? अंडरस्टैंड द कोड। तो जो भी हम कोड शेयर करेंगे उस कोड को अंडरस्टैंड करो, पढ़ो। हर एक फाइल को ओपन करके देखो कि क्या कोड है उस फाइल्स के अंदर, किस तरह से कोड लिखा है, क्या किया है। ओके, एंड सिमिलरली वो जो प्रोजेक्ट है, ये जो भी प्रोजेक्ट हम शेयर करेंगे, वो को आपका एक नया प्रोजेक्ट बनाओ बाहर, एक वर्कस्पेस, नया वर्कस्पेस बनाओ, एंड उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट देख के टाइप करो, देख के बनाओ। ओके, तो वैसे भी चलेगा। तो कि क्या हो जाएगा, एक बार आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा थोड़ा सा, देन आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो। ओके, और कोई आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसके अंदर ऐड करो, उसके बारे में पढ़ो, एंड बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। ओके, ऐसा नहीं है कि अभी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगे रहोगे, वैसा नहीं। शॉर्ट में एक 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 2 वीक के लिए, एक एक वीक के लिए आपको देखना है पूरा प्रोजेक्ट, उसे एक्सप्लेनेशन रेडी रखना है, रिज्यूमे में ऐड करना है, और इंटरव्यू स्टार्ट करना है। ओके, एंड जैसे भी बाद में आपको टाइम मिलता है वैसे थोड़ा 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 इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते रहिए, जैसे भी इंटरव्यू देते रहिए, पैरेलली इसके ऊपर भी काम करो। ओके, तो शुरू शुरू के कुछ इंटरव्यूज है वो फेल जाएंगे, ठीक है, दैट्स फाइन, हर एक के जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। कि कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ वेird क्वेश्चन आएंगे, आपको नहीं पता होगा, तो उसको क्या करना है, आपको नोट करके रखना है। इंटरव्यू जब भी लेते हैं तो मेक श्योर कि आप मोबाइल के अंदर या कहीं तो रिकॉर्ड करो उस इंटरव्यू को, एंड बाद में उसको सुनो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या कभी कभी क्या होता है याद नहीं रहता है हमें क्या क्वेश्चन पूछा था, कुछ नए क्वेश्चन होते तो ये मतलब हमें आंसर भी नहीं आता है और वो क्वेश्चन भी याद नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ रिकॉर्ड करते रहिए, रिकॉर्ड इंटरव्यूज को। एंड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको नहीं आएगा, बट 1 2 3 इंटरव्यू के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। तो ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है ही है, आप एक बार प्रिपेयर करोगे इसके बारे में, और कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे नोट करके उसके बाद प्रिपेयर प्रिपेयर करके रखना है। मॉक इंटरव्यू, आप जैसे भी फाइनल सब कुछ आपका होता है, तो जैसे कंपनीज में इंटरव्यू लेते हैं वैसे आपका एक मॉक इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपकी एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब भी कंप्लीट हो जाएगा आप हमें बता दीजिए, हम आपको टाइमिंग देंगे, क्योंकि अगर सपोज गलती से हम भूल भी जाते हैं टाइमिंग देना आपको, तो बार बार आपको हमें रिमाइंड करना है। ओके, एंड देन आपका एक, जैसे कंपनीज में हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं वैसे यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू, फाइनल मॉक इंटरव्यू लेंगे। जिस तरह से आपका बाद में एक्चुअली मॉक इंटरव्यू रहेगा उसी बेसिस पे यहाँ पे रहेगा। ओके, कुछ टेक्निकल रहेगा, प्रोजेक्ट के बारे में रहेगा, सब कुछ मिक्स एंड मैच रहेगा, और क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से रहेंगे, ना कि यहाँ पे हमने जो पढ़ाया उसके बेसिस पर वही रहेगा, बट थोड़ा सा अलग तरीके से एक्चुअल इंटरव्यू में जिस तरह से पूछते वैसे इंटरव्यूज रहेंगे। तो इतना है।
तो आई विल सेंड दिस, ओके। जैसे भी आपका सेटअप कंप्लीट होता है तो वैसे ग्रुप में जो भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो आपके लोकल का, ओके। आपका लोकल बस :3000 होना चाहिए। जैसे भी सेटअप कंप्लीट होता है देन आप कुछ टेस्ट करो उसको एंड उसका सेटअप उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो, तो मुझे ताकि समझ में आएगा कितने लोग सेटअप कर पा रहे हैं, ओके। तो लगे रहिए कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए सेटअप करने का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे 2 घंटे में सेटअप हो जाएगा। बट कुछ अगर थोड़ा सा रहता है गलत गलत मिस्टेक हो जाते हैं तो कोशिश करते रहिए, कहाँ पे क्या मिस्टेक है लॉग देखिए क्या इशू आ रहा है, ओके। उस तरह से सेटअप कीजिए, क्योंकि कंपनीज में जाने के बाद भी आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। पूरा गाइड कोई करेगा नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो कंसिडर करेंगे आपको पहले से पता है ये चीज़, ओके। तो इसलिए आपको इसका सेटअप करना है। अगर नहीं आता है देन हम एक सेशन लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे, या कुछ एरर्स भी होंगे तो उसके लिए भी एक सेशन हम होस्ट करेंगे। बट या मेक श्योर कि हाँ, कुछ लोग यहाँ पे मतलब डालेंगे कि हाँ दे आर एबल टू सेटअप इट। तो किसी का अगर सेटअप नहीं हो रहा है तो उनसे कनेक्ट कीजिए, ओके। और उनको दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उस तरह का थोड़ा सा हेल्प लेके भी आप कर सकते हैं सेटअप। तो एटलीस्ट मंडे आप ट्राई कीजिए, ट्यूसडे तक आप, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लोगों का सेटअप कंप्लीट होना चाहिए बाय फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? जैसे भी नए कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन्स आते हैं तो मुझे आप डालते चलिए, हम उसके जवाब से या और एक सेशन लेंगे। कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में किस तरह से एक्सप्लेन करना है, क्या करना है। तो आपके दिमाग में स्टिल कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे पिंग कीजिए, हम कलेक्ट कीजिए, मैं कलेक्ट करूंगा उनको, और उसके लिए मैं रेडी रहो, मतलब कुछ आंसर्स उसके रेडी रख के आपके साथ शेयर तो करूंगा, नहीं तो एक सेशन लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो अभी कोई क्वेश्चंस होगा, कंफ्यूजन होगा, देन प्लीज रेज इट। सर स्टेप्स तुम्ही याच्यात देणार आहेत का की वेगळे करायचे कोणते स्टेप्स? इन्स्टॉलेशनच्या ये प्रोजेक्टच्या? तर ऑलरेडी आहेत, हे जे टेम्पलेट मी शेअर करेल ना तुम्हाला झिप फाइल, अच्छा. हाँ 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 हाँ. याच्यामध्ये इट इज देयर इन द डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पे है ये वाला इंडेक्स ओपन करना है आपको। यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करना है ये स्टेप्स है, एडमिन का किस तरह से करना है ये वाला स्टेप्स है, स्टोर का किस तरह से करना है ये वाला है, ओके। बट अभी आपको आपके पास स्टोर नहीं है तो स्टोर के बारे में चिंता नहीं है, आपको एडमिन एंड ये बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों करना है। ओके, थैंक यू. और किसी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? और सर स्टोर ये सब सेटअप करने के बाद हमें चेंजेस ऐड करने हैं, जैसे कि लैंग्वेज चेंज करना, ये सब हमें हाँ ये करना ऐड करते चलिए, मतलब ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है एक्चुअली, आपको जस्ट ऐड करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है। बट मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ चेंजेस, सपोज कि अभी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, ओके। अभी सपोज कि ये कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, तो आप चेंज करो, प्राइस पहले दिखाओ, कैटेगरी बाद में दिखाओ, ओके। तो मतलब कि आप सोचो कि यहाँ पे कुछ तो अलग तरीके से यहाँ पे चेंजेस करना है, ओके। ओके। उस तरह के चेंजेस करा, अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी फाइल रहेगा, कौन सा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में जाके आपको चेंजेस करना है। तो उस तरह के चेंजेस कीजिए, ताकि आप कंपोनेंट में जाइए आपको कोड चेंजेस करना पड़ेगा वैसे। और इसमें कुछ एडिशनल और कुछ करना कर सकते तो वो भी कीजिए, ओके। ताकि आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए इसके बारे में। आप पहले देखो कि कौन सी फाइल्स कहाँ कहाँ पे है, बड़ा प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने फाइल्स रखी, क्या किए, वो तो पूरा पहले ओपन करके देखिए, रन कीजिए, उसके बाद आपके थोड़े थोड़े चेंजेस इसके अंदर स्टार्ट कीजिए, ओके। होप आप थोड़ा कोशिश करके इसको सेटअप करोगे, पहले तो रन करोगे इसको, दोनों बैक एंड एंड जो भी रिएक्ट का फ्रंट एंड है उन दोनों को। तो आपको थोड़ा सा नोड जेएस एंड मोंगोडीबी के बारे में भी देखना है, आपको इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल नहीं होगा वो भी सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा, या कोई भी आप ट्यूटोरियल फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे मोंगोडीबी नोड जेएस है तो कंपनी में जाके और भी कुछ होगा, सपोज कि नोड जेएस नहीं रहे, मोंगोडीबी नहीं रहेगा, माइस्क्यूएल रहेगा, तो वो आपको कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो करके क्विकली करते आना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसे नहीं बोला अरे यार ये तो अलग हो गया, हमने तो अलग पढ़ाई किया था,
वैसे कुछ नहीं होता है। ओके, अभी एक बार इंडस्ट्री में गए तो कुछ भी करना पड़ता है। अभी के जमाने में भी तो छोड़ो कि हमारे टाइम पे तो ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं था। अभी तो एक क्वेश्चन पूछो तो आपको पूरा जवाब स्टेप बाय स्टेप मिलता है, वैसे नहीं होता पहले। ठीक है, अभी के जमाने में तो मतलब आप पीछे नहीं हटना चाहिए। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, मतलब बस आप क्वेश्चन करो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है वहां से। मतलब ऐसा ही कि कोई बंदा ही सामने से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या करना है, और वो इतना नॉलेजेबल टैलेंटेड बंदा है कि दुनिया में कोई इसके जैसा टैलेंटेड नॉलेजेबल नहीं है, चैट जीपीटी एंड जेमिनी के जैसा। तो बस आपको उसको राइट क्वेश्चन पूछते आना चाहिए, वो पूरे जवाब देगा। तो वो भी आपको यूज करते आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आप किसी टीममेट को हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी इरिटेट हो जाता है। अगर वो सपोज कि मैनेजर उसके नजदीक है तो वो कंप्लेंट करेगा आपकी, तो इस बंदे को कुछ नहीं आता है। लेकिन एक बार आपका निगेटिव हो गया है ना, निगेटिविटी आपके बारे में, बाद में आप कितना भी अच्छा काम करो निगेटिव होता जाता है। तो इंप्रेशन खराब नहीं करना है, और अभी के जमाने में होना ही नहीं चाहिए इंप्रेशन खराब। ओके, अगर आपको ठीक से आपने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया ना, आपको चैट जीपीटी एंड ये जेमिनी अगर यूज करने आता है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा तो हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, आप सेटअप कीजिए, हम देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, मैं सेंड करता ये रिकॉर्डिंग एंड दोनों। ओके, और डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा, एंड आपको ये जिप फाइल भी भेज दूंगा प्रोजेक्ट का। चलिए देन, हो सकता है हमारे लास्ट सेशन होगा या बाद में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी सेटअप के लिए अगर, तो विल कनेक्ट इट। ओके, तो थैंक्स गाइस, थैंक यू, थैंक यू।